The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Lokman IAS and make your UPSC dreams come true. Download the app now. Hello, my name is Ujjwal Kumar. I am going to discuss about the EPFO EO examination strategy in this video. I have secured an All India rank of 274 in EPFO EO 2020 examination. So I'll be talking about the strategy of the written paper, which is of 300 marks, and of the interview, which is of 100 marks. Talking about myself, मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, फ्रॉम गया, और मैंने अपनी इंजीनियरिंग की है फ्रॉम जादवपुर यूनिवर्सिटी कैलकाटा. उसके बाद मैंने 2019 में अपनी जॉब छोड़कर उसके बाद सिविल सर्विस के प्रिपरेशन में लग गया, और फॉर द पास्ट 3 years आई हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज. इसी बीच में 2020 में वाइल द कोविड वाज स्टार्टिंग, EPFO EO का फॉर्म आया था एंड आई फिल्ड अप दैट फॉर्म, बट आई वाज नॉट दैट वेरी सीरियस फॉर दिस एग्जामिनेशन क्योंकि मैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहा था. But finally the exam was held in September 2021 and I sat for the written examination and qualified that, and then the interview was on 12th of July 2022, and finally on 12th August I got the result and I secured an All India rank of 274. So starting with the written paper, पहले written paper में क्या है कि total number of questions is 120 and it carries 300 marks, means each question is of 2.5 marks. Now there are various sections in the first written paper. So the first section is general English, then we have Indian economy, then we have history, Indian freedom struggle, not the ancient and medieval, only the Indian freedom struggle. Uske we have polity. Apart from that we have general science, and we have general ability and aptitude, and we have computer application of computer knowledge. Uske alawa we have a different part which is different from the CSE syllabus, is the social security, labor laws, industrial relation, which is to be studied for this examination, and accounting. So starting with the first part, general English, it is around 20 questions, or that is not very difficult. General English के लिए if anybody has a basic understanding of English language, they can make it through all the 20 questions. Those are not very difficult. उसके बाद if we come to the general ability and aptitude, तो it is around 15 questions. तो general ability aptitude के लिए if someone is preparing for civil services, they would be sitting for CSAT, and in most of the civil service examination there is now CSAT is there, so it is not of that very high level like that of CAT. So normal mathematics and quantitative aptitude will help you solve those 15 questions. उसके बाद coming down to the computer application of computer knowledge, उसमें वी हैव 10 क्वेश्चंस. तो वो 10 क्वेश्चन के लिए इफ़ समवन इज़ फ्रॉम कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड, और समवन इज़ फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, दे वुड फाइंड, और समवन इज़ फ्रॉम कंप्यूटर बैकग्राउंड, दे वुड फाइंड इट अ बिट ईजी. नॉट दैट वेरी ईजी, बट एक दो सवाल ऐसे होते हैं विच यू वुड नॉट बी एबल टू डू, बट मोस्टली द क्वेश्चंस आर फ्रॉम बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम एंड द सॉफ्टवेयर पार्ट. So if you go through the basics of computer application, you will be able to solve those questions. Like questions were from MS Excel, questions were from flip-flop, transistor, binary, hexadecimal. So these are the basic questions which they ask in those 10 questions. Now we have covered 20 English questions, 10 computer knowledge questions, 30. We have covered the 15 questions of general aptitude, that is 45. So out of 120 questions, these are the 45 questions which is very general in nature. Now we have general science paper. So general science, in that we have the questions, we have around say 14 or 20 questions or 15 questions, it varies. Last year it was around 14 questions of general science. उसमें if somebody has a knowledge of say class 9th and 10th science, it would be enough to solve those 14-15 questions. So you need to just go through the basic NCERT books of class 9th and 10th, and you will be able to solve those 10-15 questions, whatever is there. Now coming to the GS part.
So if we see the civil services syllabus and EPFO syllabus, then there is a bit of overlapping, but the EPFO syllabus is a bit less than the civil services syllabus. Civil services में क्या है कि there is geography also, and the syllabus of it is bit broad, but in EPFO we see कि history में there is just Indian freedom struggle, so you need not study ancient and medieval. In polity, basic questions are asked, and there is economy. So these are the only 3 papers from GS from which the questions are asked. अगर आप सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको अलग से उसके लिए नहीं पढ़ना होगा. अगर आपने बेसिक बुक्स लाइक हिस्ट्री के लिए, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के लिए आपने स्पेक्ट्रम पढ़ी है तो क्वेश्चंस विल बी डूएबल फ्रॉम दैट. और बहुत बेसिक से क्वेश्चन आते हैं. जैसे मुझे इस बार याद है कि एक क्वेश्चन आया था कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी किसने बनाया है, उसके फाउंडर कौन है, और बेसिक फ्रीडम स्ट्रगल के क्वेश्चंस आते हैं. उसके बाद इफ़ वी गो टू पॉलिटी, तो पॉलिटी में लक्ष्मीकांत वुड बी एनफ. अगर किसी ने लक्ष्मीकांत को पढ़ा अच्छे से तो उससे सारे सवाल बन जाएंगे, बहुत ही डिफ़िकल्ट सवाल नहीं आता है. उसके बाद अगर हम लोग इकोनॉमी में हैं तो इकोनॉमी में बेसिक इकोनॉमी क्वेश्चंस और बजट से रिलेटेड थोड़े क्वेश्चंस, ये सारे क्वेश्चंस आते हैं. अगर आप सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फिर इकोनॉमी में कोई वैसे दिक्कत नहीं होगी. अगर आप नहीं कर रहे, इफ़ समवन इज़ ओनली प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन, तो उनके लिए आपको थोड़ा सा बेसिक इकोनॉमी पढ़ना पड़ेगा. या तो आप मृणाल की इकोनॉमी से पढ़ सकते हैं, या तो आप किसी और बुक को रेफ़र कर सकते हैं, किसी कोचिंग के मटेरियल को रेफ़र कर सकते हैं. पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत इज़ मोर देन एनफ, और हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम इज़ मोर देन एनफ. उसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. उसके बाद दीज आर द 3 पार्ट, जीएस के ये 3 पेपर हो गए. उसके बाद हम लोग आगे जाएंगे तो नेक्स्ट इज़ द स्पेशल पार्ट ऑफ द ईपीएफओ सिलेबस. दैट इज़ वेरी डिफरेंट. और इसमें क्या होता है कि जो लोग सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको भी अलग से पढ़ना पड़ता है. जो अकाउंटिंग्स और इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉस पढ़ रहे हैं उन्हें उतनी दिक्कत नहीं होती है, लेकिन इट इज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट. इतना भी नहीं है कि उसे नहीं कर सकता है. और उनका वेटेज अराउंड आउट ऑफ 120 क्वेश्चंस 40 क्वेश्चंस 50 क्वेश्चंस 40 क्वेश्चंस के आसपास होगा, उससे ज़्यादा नहीं होता. तो अगर आप जीएस और जनरल साइंस और एप्टीट्यूड, उसके बाद जनरल इंग्लिश पे अगर आपकी कमांड अच्छी है तो यू कैन अटेम्प्ट 70 क्वेश्चंस ईजिली आउट ऑफ 120 क्वेश्चंस. अब ये 40 क्वेश्चन जो लगभग उसके आसपास आते हैं, उसके लिए आपको बेसिक्स पढ़ना होगा. जैसे कि विल स्टार्ट फ्रॉम द इंडस्ट्रियल रिलेशन. तो इंडस्ट्रियल रिलेशंस में ट्राइब्यूनल हो गए, उसके बाद ट्रेड यूनियंस हो गए, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स हो गए, ये सारी चीज़ें पढ़नी है. उसके बाद इफ़ वी मूव टू दी लेबर लॉस पार्ट, तो अभी कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी आ गया, कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी आ गया, 4 लेबर कोड्स जो हैं, और वो 29 लेबर लॉस को मर्ज करके बनाया गया है. तो यू नीड टू गो थ्रू दोज लेबर कोड्स. उसमें क्या है कि बस बेसिक्स पढ़ना है कि लेबर कोड्स में क्या क्या प्रोविजंस हैं, क्या क्या एक्सेप्शंस हैं. उसमें बहुत डीप में जाकर नहीं पढ़ना है, वो बस बेसिक्स ही पूछेंगे आपसे. इंडस्ट्रियल रिलेशन में बहुत डीप में जाकर नहीं पढ़ना है, हर चीज़ की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. उसके बाद एक है ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसके बारे में आपको पढ़ना होगा. तो ILO की हिस्ट्री हो गई, कन्वेंशंस हो गए, जैसे इंडिया ने कुछ कन्वेंशन साइन नहीं किए हैं, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होगी. बस बेसिक्स कवर करना होगा कि कितने सारे कौन कौन से कन्वेंशन हैं, कौन कौन से कन्वेंशन इंडिया ने साइन नहीं किए हैं. और फिर उसके बाद आता है हमारा हिस्ट्री ऑफ ILO. और अगर रिसेंटली कोई ILO की मीट हुई, जैसे इंडिया ने 2021 में शायद ILO को चेयर किया था, तो उसमें कुछ रेजोल्यूशन या कुछ पास हुए, तो वो सब आप देख सकते हैं. उसके बाद नेक्स्ट है ILO के बाद हम लेबर लॉस की बात कर रहे थे. फिर सोशल सिक्योरिटी हो गया हमारा, लेबर लॉस हो गया, इंडस्ट्रियल रिलेशन हो गया. नेक्स्ट पार्ट इज़ अकाउंटिंग. अकाउंटिंग के लिए किसी को बहुत ज़्यादा कॉमर्स बैकग्राउंड से होने की ज़रूरत नहीं है. अगर आप बेसिक अकाउंटिंग समझ सकते हैं तो यू कैन सॉल्व दोज क्वेश्चन. बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते. बैलेंस शीट के क्वेश्चन आते हैं, क्रेडिट और डेबिट की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपको, और टाइप्स ऑफ अकाउंट्स पता होना चाहिए. पर्सनल अकाउंट्स होता है, बहुत तरह के अकाउंट्स होते हैं. तो ये सारी चीज़ें अगर आप कवर कर लें तो इट इज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट टू सॉल्व दोज क्वेश्चंस. तो अब जब हम बात कर रहे हैं स्पेशल पार्ट ऑफ EPFO, ये सारे जो क्वेश्चंस हैं जो या सिविल सर्विसेज या दूसरे एग्ज़ाम्स के सिलेबस से अलग है, तो इन्हें कैसे कवर करें. सिविल सर्विस के लिए तो मैंने आपको बता दिया कि आपको क्या क्या कवर करना है, लेकिन इन सब के लिए हमें क्या करना होगा कि वी कैन जस्ट पिकअप कोई भी कोचिंग का मटेरियल. जैसे बहुत सारी कोचिंग्स हैं जो EPFO के मटेरियल प्रोवाइड करती हैं. आप किसी भी कोचिंग के मटेरियल को उठा लें और बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग उसकी, आप उसको अगर अच्छे से पढ़ लेंगे एक बार, और मल्टीपल रिविजन्स के बाद आपको उतना डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा. क्योंकि सोशल सिक्योरिटी और लेबर लॉज ऐसे भी हम लोग सिविल सर्विसेज के लिए थोड़ा पढ़ते हैं, तो उसको आपको हल्का और ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा. एज इनकी प्रोविजंस क्या है, उसके इस्टेब्लिशमेंट्स कौन कौन से उसके अंदर आती हैं, कौन कौन से लॉज को किस
कोड में रखा गया है और कौन कौन से इस्टेब्लिशमेंट्स एग्जेम्प्टेड हैं या उनकी क्राइटेरिया क्या है कि उस कोड के अंदर आएंगे, ये सारी चीज़ें आपको देखनी होगी। इंडस्ट्रियल रिलेशंस में आपको इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ये सब देखना होगा, तो उसके लिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग, तो किसी भी कोचिंग के मटेरियल से आपको ये सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। और उसके बाद अकाउंटिंग के लिए भी आप किसी भी कोचिंग के मटेरियल को उठा सकते हैं या किसी के कोचिंग के लेक्चर को देख सकते हैं, जो लोग इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कराते हैं उनसे आपको पता चल जाएगा। बहुत सारे कोचिंग्स हैं मार्केट में। अगर आपको बुक कोई स्पेसिफिकली है तो एक बुक आती है करण चौधरी की, जिस बुक को आप रेफ़र कर सकते हैं इसके लिए। उसमें प्रैक्टिस सेट्स भी हैं और उसमें सारे क्वेश्चंस भी हैं और बेसिक कंसेप्ट भी दे रखे हैं सारी चीज़ों के, तो उससे भी आप कवर कर सकते हैं। लेकिन मैंने किसी कोचिंग के मटेरियल को रेफ़र किया था, तो आप उस कोचिंग के मटेरियल को रेफ़र कर सकते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा। या बहुत सारी कोचिंग जैसे सक्सेस ट्री हो गया, एडुटैप हो गया, मैंने टेक्स्ट बुक रेफ़र किया था। टेक्स्ट बुक के मटेरियल बहुत ही अच्छे लगे मुझे, बेसिक्स कवर था उसमें और बहुत ही ज़्यादा डीप में जाके नहीं था, सब चीज़ों को हल्के इसमें टच किया था, तो दैट इज़ मोर देन इनफ, मतलब मेरा उससे काम हो गया था। ये हो गया हमारा लेबर लॉज ये सब। उसके बाद एक लास्ट सेक्शन बचता है करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स के भी करीबन 15 से 20 सवाल होते हैं और ये करंट अफेयर्स थोड़े स्टेट पीसीएस टाइप के होते हैं, मतलब सिविल सर्विस में जैसे करंट अफेयर्स आते हैं वैसे नहीं होते हैं, उससे थोड़ा सा लोअर लेवल का होता है। जैसे कि आप स्टेट पीसीएस में जो डायरेक्ट सवाल आते हैं आपको ये सब भी देखना होगा। कुछ कुछ सिविल सर्विसेज टाइप के करंट अफेयर्स भी होते हैं, लेकिन दैट इज़ वेरी लेस इन नंबर। मोस्टली फैक्चुअल करंट अफेयर्स आते हैं। इफ़ यू कैन गो थ्रू एनी करंट अफेयर मटेरियल, तो उससे आपका काम चल जाएगा। या आप रेगुलर मैगजीन पढ़ रहे हो किसी की, तो यू कैन डू इट फ्रॉम दैट ऑल्सो। अदरवाइज सम मैगजीन विच इज़ मेड पर्टिकुलरली फॉर द स्टेट पीसीएस और समथिंग, आप उसे उठाकर आप पढ़ सकते हो। यू कैन कवर दोज 15 क्वेश्चंस ऑफ करंट अफेयर फ्रॉम दैट। तो हमने सारा सेक्शन कवर कर लिया ऑलमोस्ट। कौन कौन सी बेसिक बुक्स है किस हर सेक्शन के लिए और कैसे प्रिपेयर करना है। सो 120 क्वेश्चंस में I had attempted around 109 questions and I was expecting around 185 marks in the written paper। अभी तक मार्क्स आए नहीं हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस में डाउट भी है। सो ओवरऑल आई कैन से इज़ दैट दिस इज़ नॉट अ वेरी डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम टू क्रैक रिटन एग्जामिनेशन, क्योंकि मुझे जब 2020 में मैंने फॉर्म भरा था 2020 में, तो मुझे पता नहीं था कि मैं एग्ज़ाम दूंगा या नहीं, बट somehow I gave this exam। I prepared mostly around say for 1 month। इसके लिए सिर्फ 1 महीने की तैयारी की ज़रूरत है। अगर आप 1 महीने डेडिकेटेडली इसके लिए पढ़ते हैं तो यू कैन क्रैक इट। नाउ कमिंग टू द इंटरव्यू। सो ईपीएफओ के इंटरव्यू की एक डिफरेंट बात ये है, एक अलग बात ये है कि ईपीएफओ का इंटरव्यू क्वालिफाइंग नेचर का होता है। अगर हम सिविल सर्विसेज के इंटरव्यू को देखें तो उस क्वालिफाइंग नेचर के नहीं होते, उसके मार्क्स ऐड होते हैं लेकिन कोई मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं होते उसमें। लेकिन ईपीएफओ के इंटरव्यू में यू हैव टू सिक्योर 50% मार्क्स इफ़ यू आर फ्रॉम जनरल कैटेगरी। सो अगर 100 मार्क्स की इंटरव्यू इस बार 100 मार्क्स की इंटरव्यू हुई थी और 300 मार्क्स का रिटर्न, पहले थोड़ा अलग पैटर्न था, इस बार 75-25 हो गया। तो 100 में यू हैव टू गेट 50। इफ़ यू डोंट गेट 50 यू विल बी एलिमिनेटेड इर्रेस्पेक्टिव ऑफ योर मार्क्स इन पेपर 1। उसके बाद अगर आप ओबीसी कैटेगरी से तो आपको 45 मार्क्स लाने होंगे, अगर आप SC ST से हैं तो 40 मार्क्स लाने होंगे। तो हर किसी के लिए अलग अलग मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। इंटरव्यू के लिए पहले मैं एक्सपीरियंस की बात करूँगा इंटरव्यू की, कि मतलब मेरा ये यूपीएससी का पहला इंटरव्यू था एंड आई क्रैक्ड इट इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। तो जब यूपीएससी भवन में आप जाते हो इंटरव्यू देने के लिए, इट इज़ अ वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस। और ये एग्ज़ाम ये ऐसा एग्ज़ाम है कि इट गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी टू गेट इनटू यूपीएससी भवन एंड सिट इन फ्रंट ऑफ दोज लर्नेड पीपल, द चेयरमैन एंड द अदर मेंबर्स हु टेक योर इंटरव्यू, बिना किसी मेंस और किसी पेपर के। जस्ट यू नीड टू पास वन पेपर एंड यू कैन गो एंड give an interview over there. So interview में there were 4 members. My chairman was Srimati Sujata Mehta ma'am. She is the retired IFS officer and she has retired from UPSC I guess. So a lot of retired members were taking our interview this time because और भी लोगों के interview चल रहे थे. So she was my chairman and the questions and there were 4 members including the chairman. 3 other members were there, 2 male members and 2 female members including the chairman ma'am. So my questions, like in my interview, the questions were mostly around my job experience because I had worked in a data analytics firm. So the questions were like कि why did you leave engineering, तुमने इंजीनियरिंग क्यों छोड़ा और उसके बाद data analytics में क्यों आ गया, data analytics में थे तो फिर उसे छोड़कर civil services में क्यों आ गया, why do you want to prepare for civil service examination and all of these things, कि तुमने जॉब में क्या सीखा उसे EPFO में कैसे इम्प्लीमेंट करोगे, strength weakness. So the interview part is very important इस एग्ज़ाम के लिए। उसके लिए आपको अपना डैफ कवर करना पड़ेगा। तो डैफ में बहुत डिटेल्ड डैफ नहीं होता है जैसे कि आपका सिविल सर्विसेज में होता है। इसमें दे आस्क यू दी हॉबी,
योर जॉब एक्सपीरियंस, योर एजुकेशनल बैकग्राउंड एंड योर होम टाउन एंड दीज थिंग्स। उसके अलावा और बहुत ज़्यादा आपकी अचीवमेंट्स ये सब इसमें नहीं पूछते हैं। सो इफ़ यू प्रिपेयर योर डैफ प्रॉपरली तो भी यू कैन क्लियर दिस इंटरव्यू। इस इंटरव्यू के लिए मैंने एक टीचर से गाइडेंस लिया था, इनका नाम संजीव कबीर है। उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया था इसके लिए। तो आप अगर चाहें तो बिना गाइडेंस के भी कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो गाइडेंस भी ले, क्योंकि मेरा पहला इंटरव्यू था यूपीएससी का। सो आई थॉट कि आई शुड टेक गाइडेंस फ्रॉम समवन। इफ़ यू हैव समवन हु हैज़ अपीयर्ड इन सिविल सर्विसेज इंटरव्यू, यू कैन टेक गाइडेंस फ्रॉम देम ऑल्सो। इंटरव्यू इज़ लाइक इट कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड पॉइंट बाई पॉइंट। जैसे मैंने क्या किया था कि मैंने सारे टॉपिक्स को प्रिपेयर किया था, लेबर लॉज, इंडस्ट्रियल रिलेशन, अबाउट ईपीएफओ। हाँ, रिटर्न में एक चीज़ बताना भूल गया था कि ईपीएफओ से रिलेटेड भी आपके पास सवाल आ सकते हैं उसमें, जैसे हिस्ट्री ऑफ ईपीएफओ आ सकता है, या ईपीएफ एक्ट है, मिसलेनियस एक्ट है, या कंट्रीब्यूशन जो होता है ईपीएफओ में। तो आप एक बार ईपीएफओ को भी अच्छे से पढ़ लेंगे। उसके लिए आपको या तो ईपीएफओ की वेबसाइट को रेफ़र कर सकते हैं, या किसी मटेरियल को रेफ़र कर सकते हैं, या उनकी एनुअल रिपोर्ट को रेफ़र कर सकते हैं। उससे आपका काम चल जाएगा। और कुछ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के जो स्कीम्स हैं वो आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि ईपीएफओ इज़ अ बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो इसलिए आप उसको भी देख सकते हैं। अच्छा, इंटरव्यू पे अगर आते हैं तो जैसे मैंने बताया कि मैंने हर एक चीज़ को कवर किया था, पॉइंट बाय पॉइंट, डिटेल बाय डिटेल, एवरीथिंग अबाउट माय हॉबी। जैसे माय हॉबी वाज कुकिंग, सो आई कुकिंग नॉर्थ इंडियन क्विजीन स्पेशली। तो फिर मैंने सारा कुछ पढ़ा कि नॉर्थ इंडियन क्विजीन में क्या क्या आता है, वाई नॉर्थ इंडियन, वाई नॉट साउथ इंडियन, या इतना नॉर्थ इंडियन क्यों फेमस है। तो ये सारी जो भी चीज़ें, जो भी सवाल बन सकते थे, मैंने खुद से उसे पॉइंट करके और सबका आंसर प्रिपेयर करके रखा था। इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, फिर उसके बाद, क्योंकि यहीं से इंट्रोड्यूस योर सेल्फ सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे, क्योंकि मुझसे सुजाता मेहता मैम ने पहले ही पूछा था, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, टेल मी अबाउट योर एजुकेशनल बैकग्राउंड एंड योर जॉब एक्सपीरियंस, और फिर वहाँ से मेरा इंटरव्यू जॉब एक्सपीरियंस पे चला गया था। सो इंटरव्यू में अगर आप चाहें तो इंटरव्यू को एक डायरेक्शन में मोड़ सकते हैं। इफ़ यू वांट कि आपसे किसी पर्टिकुलर चीज़ पे सवाल पूछा जाए, तो यू कैन इंक्लूड दैट इन योर इंट्रोडक्शन इन व्हाइल यू आर इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ, एंड दे माइट बी इंटरेस्टेड एंड दे विल आस्क क्वेश्चन फ्रॉम दैट। it may be possible that they will not ask question from there, उससे नहीं भी पूछ सकते हैं, लेकिन अगर पूछा तो it will be in your favor। मेरा इंटरव्यू करीबन आधे घंटे चला था। तो अब उसके बाद, इन सब के बाद मैंने अपना डैफ प्रिपेयर किया। जैसे माई डेट ऑफ बर्थ इज़ ऑन 8th March, सो आई प्रिपेयर्ड कम्प्लीटली ऑन इंटरनेशनल वुमेंस डे, बिकॉज 8th March को इंटरनेशनल वुमेन डे पड़ता है। तो उसकी हिस्ट्री, इंडिया में क्या हिस्ट्री है, ये थीम्स क्या हैं 2020 के, 2021 के, ये सारा कुछ मैंने प्रिपेयर किया था। अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में प्रिपेयर किया, अपने कॉलेज के बैकग्राउंड के बारे में प्रिपेयर किया, यूनिवर्सिटी के बारे में, जैसे जादवपुर यूनिवर्सिटी वाज क्रिएटेड ड्यूरिंग स्वदेशी मूवमेंट, तो अरविंदो घोष, इन सब के बारे में। तो बहुत ही डिटेल्ड प्रिपरेशन किया था मैंने। बट अगर आप इतना भी डिटेल नहीं करें तब भी चलेगा। यू नीड टू बी अवेयर, आपको पता होना चाहिए अपने बारे में कि आपने क्या किया है, क्यों किया है, उसको आपको जस्टिफाई करना होगा वहाँ पे। जैसे उन्होंने मुझसे पूछा था कि तुमने 6 महीने में जॉब क्यों छोड़ दी, सिविल सर्विसेज में क्यों आ गए, तो मुझे उसे जस्टिफाई करना था, एंड आई कुड जस्टिफाई इट। उसके बाद लास्ट में जब इंटरव्यू ख़त्म हो रहा था, तो मैम ने पूछा कि डू यू वांट मी टू आस्क समथिंग एल्स। सो आई वाज द फाउंडर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप सेल इन माय यूनिवर्सिटी। सो मैंने उसे वहाँ पे पिच किया। तो मैम ने पूछा कि वाई डिडंट यू वांट टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, उसका भी मैंने थोड़ा अच्छे से जवाब दिया था। शी वाज सेटिस्फाइड। तो इंटरव्यू के लिए आपको डैफ को प्रिपेयर करना है पर्टिकुलरली। जो भी आपने डिटेल डाला डैफ में, यू शुड बी अवेयर ऑफ दैट। आपकी अगर जॉब प्रोफाइल डाली है तो यू शुड बी अवेयर ऑफ दैट जॉब प्रोफाइल। सब कुछ के लिए आपको मतलब अवेयर होना चाहिए और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ताकि आप वहाँ पे जस्टिफाई कर सको। उसके बाद बैकग्राउंड के अलावा जो लेबर लॉज ये सब है, क्योंकि कुछ बच्चों से उन्होंने ईपीएफओ के बारे में पूछा था, लेबर लॉज के बारे में पूछा था, तो आप ये एक कंपलसरी मतलब एक पार्ट है ईपीएफओ का, क्योंकि अगर हम एज एन इन्फोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर जॉब करेंगे तो हमें लेबर लॉस की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, इसलिए वो लेबर लॉस पूछते हैं। और बेटर होगा कि आप ईपीएफओ के बारे में और लेबर लॉस के बारे में पढ़ लें इंटरव्यू के लिए, सो दैट इफ दे आस्क तो आप उसका जवाब दे सकें। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Lokman IAS and make your UPSC dreams come true. Download the app now. So overall, this is how you can prepare for this examination. Apart from this एक क्वेश्चन उठता है उसमें कि डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन भी है ईपीएफओ ईओ में, कि डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन जो होता है उन्हें ज़्यादा वेटेज मिलता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपके पास डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन है तो दे माइट कंसीडर यू, बट उनके लिए भी इंटरव्यू ऐसा ही होता है जैसे बाकी लोगों के लिए होता है। सो नो नीड टू वरी कि इसके लिए डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है, हमारे पास तो नहीं है।
बिकॉज मोस्टली इंजीनियर्स आर द वन हु क्लियर दिस एग्जामिनेशन. अगर आप टोटल में से देखें तो मोर देन 50-60% आर इंजीनियर्स. सो कोई मैटर नहीं करता कि आप किस बैकग्राउंड से हैं, दूसरे बैकग्राउंड के बच्चे भी क्लियर करते हैं. तो इट इज़ नॉट अ वेरी डिफिकल्ट एग्जाम टू क्रैक. All you need to give is about 1 month for written and another 2 to 3 months if possible or 1 month for interview. उसके बाद एक चीज़ मैं बताना भूल गया था कि रिटन टेस्ट के लिए मैंने टेस्ट लगाए थे बहुत, क्योंकि एग्ज़ाम इन्वॉल्वमेंट के लिए आपको खुद को उस तरह से ढालना पड़ता है. यू नीड टू सेट योर बायोलॉजिकल क्लॉक, योर मेंटल क्लॉक, एवरीथिंग यू नीड टू सेटल अकॉर्डिंग टू द एग्जामिनेशन. आपको एक स्ट्रैटेजी बनानी होती है. तो मैंने ऑलमोस्ट 15 टेस्ट लगाए थे EPFO के टेक्स्ट बुक से ही. टेक्स्ट बुक पे टेस्ट अवेलेबल थे. वो एक ऐप है जिस पे सारे टेस्ट अवेलेबल होते हैं. तो उस पर मैंने करीबन 15 टेस्ट लगाए थे एंड आई स्कोर्ड मैक्सिमम मार्क्स अराउंड 208 और समथिंग आउट ऑफ 300. तो अगर आप इस तरीके से स्कोर करेंगे टेस्ट में 180, 190, 200, तो आप जो एक्चुअल एग्ज़ाम है उसमें भी आप अच्छे से स्कोर कर सकते हैं. सो ओवरऑल EPFO इज़ अ गुड जॉब. और जो लोग सिविल सर्विस के प्रिपरेशन करते हैं उन्हें एक बैकअप चाहिए होता है, उनके लिए बहुत अच्छा बैकअप हो सकता है. बिकॉज एज एन अकाउंट ऑफिसर आपको बस 9 to 5 जॉब करना होता है, जैसे कि मुझे पता चला है बाकी लोगों से जो EPFO में है. तो 2 साल के लिए आपके पास काफ़ी टाइम होता है प्रिपरेशन करने के लिए. सो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ प्लान B फॉर सिविल सर्विस प्रिपरेशन, तो EPFO कैन बी अ गुड अपॉर्चुनिटी एंड यू कैन प्रिपेयर फॉर इट. और इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं चाहिए. सो that's it about EPFO. If you have any questions you can ask in the comments. I would like to thank DKT for this opportunity कि उन्होंने मुझे अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने का मौका दिया. एंड आई वांट कि जो लोग भी इस एग्ज़ाम को, क्योंकि थोड़ा लेस नोन एग्ज़ाम है. लास्ट एग्ज़ाम इसकी 2017 में हुई थी, फिर उसका 2020 में फॉर्म आया था, फाइनल रिजल्ट 2022 में आया. तो लेस नोन है लेकिन इट गिव्स अ गुड अपॉर्चुनिटी. सो इसलिए मैं बोलूँगा कि जो लोग भी प्रिपेयर करना चाहते हैं फॉर प्लान B, दे कैन गो फॉर दिस एग्जामिनेशन. So thank you DKT, thank you DKT team for giving me this opportunity to share my experience. Thank you.